अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू करते हैं अज दी क्लास। किदा सब ठीक ठाक? आज हमने पढ़ना था इंटरसेसियोने। इंटरसेसियोने राजो तो पढ़ लिया था ना? हाँ। अच्छा, जब भी आप लोग क्लास शुरू करें कॉपी पेंसिल पास रखें, ठीक है। उसके ऊपर डेट लिखें, चैप्टर नंबर लिखें और ये पेज नंबर लिखें लाजमी। पेज नंबर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप दोबारा स्टडी करेंगे ना तो वो फिर आप वही पेज खोल के वहां से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर और वर्ड्स मीनिंग जो बताती हूँ वो साथ साथ जरूर लिखें। गजाला, इसका कौन सा पेज नंबर था? राजू का इंटरसिजियोने। ये पेज नंबर 9 था पहले ना, 9 तक हमने अच्छा, पढ़ा था। आज पेज नंबर 10 से शुरू करेंगे। ओके, सही। चलो जी शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था इंटरसेसियोने राजो। इंटरसेसियोने राजो क्या होता है, कौन बताएगा? कोई एक बंदा बता दे। ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, इंटरसेसियोने राजो यानी ਉਹ ਚੌਕ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਮਾਫੋਰੋ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਂਪੇ, ਅੰਡਰਪਾਸ, ਬ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸੈਸਿਓਨੇ ਲਿਵੇਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਬ੍ਰਿਜ, ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਂਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਲਾ ਇੰਟਰਸੈਸਿਓਨੇ ਇਨਕਰੋਚੋ ਆ ਲਿਵੇਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵੇਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ ਕੰਪਰੈਂਡੇ। ਕੰਪਰੈਂਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਸੈਸਿਓਨੇ, ਇਹ ਲਿਵੇਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਲਿਵੇਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਨੀਚੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਰੈਂਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। strade situate ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ad altezze। altezze ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਹਾਈਟ, ठीक है। diverse मुख्तलिफ। इंटरसेसियोने लिवेली सफलसाती ਉਹ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਹਾਈਟਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਂਪੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲਾ ਇੰਟਰਸੈਸਿਓਨੇ ਇਨਕਰੋਚੋ ਐ ਲਿਵੇਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ ਫਾਚਿਲਿਟਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਚਿਲਿਟਾ ਦਾ मतलब है आसान बनाना। आसान बनाता है la circolazione चलने को, perché क्योंकि escludo बाहर निकल जाता है all'incrocio diretto क्रॉसिंग यानी क्रॉसिंग होना, diretto डायरेक्ट क्रॉसिंग, fra ਦਾ मतलब है दरम्यान, ई veicoli ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਲਿਵੇਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਰੋਚੋ ਰਾਜੋ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, समझ आई इस गल दी? ला इंटरसेसियोने आ लिवेली सफलसाती कंप्रेंडे। कंप्रेंडे का मतलब है शामिल। कंप्रेंडे का मतलब भी शामिल है, कंपोर्टा शामिल है, कंपोर्टारे ओदा भी मतलब शामिल है, ठीक है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਸ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁxtਲਿਫ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਰਾਂਪੇ, ਸੋਵਰਾਪਾਸੀ, ਉਹ ਸੋਤੋਪਾਸੀ। ਰਾਂਪੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਿਵੇਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?
राम्पे जो जोड़ते हैं सड़क को। हाँ जी, सोवरापासी जो पुल होते हैं, और सोतोपासी जो अंडरपास होते हैं। ठीक है। La intersezione a livelli sforzati è moneta, यानी ये जो चौक होते हैं ए मोनीटा लगे होंदा है इन्हां च इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बना होता है राम्पे राम्पे सोवरापासी सोतोपासी अंडरपास। राम्पे ਜਿਹੜੇ एक रोड ਨੂੰ दूसरे रोड तो जोड़ते हैं। ठीक है, जिस तरह जमीन तो सड़क ऊपर ऊंचाई च जा रही है तो और राम्पा ਜਿਹੜਾ है ना वो ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ जोड़ता है। ठीक है, सोवरापासी पुल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, सोतोपासी अंडरपास ਨੂੰ। फिर il collegamento जोड़ने वास्ते ਪਰਾਸਤਰਾਦੇ ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਲਿਵੇਲੀ लेवल ते diversi मुख्तलिफ। ठीक है, यानी लिवेली सफलसाती जो रोड है जो बने होते हैं वो इस तरह के बने होते हैं, उसमें राम्पे बने हुए होते हैं, पुल बने होते हैं और अंडरपास बने हुए होते हैं। पर इल कोलिगामेंटो जो कि जोड़ते हैं स्त्रादे रोडों को जो कि मुख्तलिफ लेवलों पे बने हुए होते हैं, ये उनको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, La intersezione a livelli sforzati è un croce, è एक चौक है, è raso fra una strada। ओके, हुन ए लिवेली सफलसाती दे बारे च गल कर रहा है कि ए जेड़ा चौक है ना ए राजो चौक है, जेड़ा दरम्यान है फरा दरम्यान una strada e binari ट्रेन दी पटरी जे del treno ट्रेन दी। तो ये सवाल गलत हो जाएगा, जबकि लिवेली सफलसाती मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि मुख्तलिफ हाइट पे रोड बने हुए होते हैं जिनमें डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं होती, उसमें ये जो है ट्रेन की पटरी का कोई रोल नहीं है। Nell'intersezione a livelli sforzati non valgono i limiti massimi। अब यहाँ पे इस सवाल को आपने गौर से पढ़ना है कि ये जो लिवेली सफलसाती रोड है ना, यहाँ पे नहीं होता है वेलगोनो, या नहीं फायदा देती या नहीं बताती लिमिटी मासिमा जनरली दी विलोचिता, यानी यहाँ पे कोई मिनिमम स्पीड या लिमिट स्पीड नहीं होती, मिनिमम या मैक्सिमम, जबकि ये गलत है। जो चौक है वो चाहे राजो हो, चाहे लिवेली सफलसाती हो, चाहे आटोस्ट्रादा है, एक्स्ट्रा उर्बाने है, चाहे शहर के अंदर है, चाहे शहर से बाहर है, हर जगह पे मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड होती है रोड के लिहाज से। ठीक है, तो इस लिहाज से ये भी गलत है। La intersezione a livelli sforzati è di norma कानून दे मुताबिक रेगुलेट किया जाता है द सेमाफोर नाल, ਇਹ भी गलत है। ਜਿਹੜਾ ਲਿਵੇਲੀ ਸਫਲਸਾਤੀ ਚूंकि ਮੁxtਲਿਫ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਮਾਫੋਰ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੋਚੋ ਰਾਜ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮਾਫੋਰ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। सेमाफोर इशारा है। ठीक, यानी कि इस पे इशारे नहीं लगे होते हैं, हाल ही उन पे जो लिवेली वो जो होते हैं उन पे लगी होती हैं, लिवेली सफलसाती पे इशारे नहीं होते। बिल्कुल ठीक, समझ आ गई यहाँ तक? किसी का कोई और क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है या चले आगे? तीसरे क्वेश्चन च कोलिगामेंटो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਕੋਲਿਗਾਮੈਂਟੋ जोड़ਦੇ ਨੇ, यानी वो जुड़े ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਮਪਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਵਰਾਪਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। क्योंकि देखो एक जिस तरह पुल बनया है, ठीक है, पुल ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੁਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਪੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਲਿਗਾਮੈਂਟੋ मतलब जोड़ना कि ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ मतलब लिखोगे जोड़। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं, अगो आ जाता है आटोस्ट्रादा। आटोस्ट्रादा दी पहले मैं डेफिनेशन दस दवा। आटोस्ट्रादा एक ऐसा रोड है मैक्सिमम स्पीड जेडी है आटोस्ट्रादे ते हुंदी है। ठीक है, आटोस्ट्रादा जेड़ा है वो साइडा तो बंद हुंदा है और पेड हुंदा है। ठीक है,
ਇਹਦੇ ਚ ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ट्रैवल ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ मुख्तलिफ शहरों ਨੂੰ एक दूसरे नाल जोड़ता है और जल्दी पहुंचाता है। यानी यहाँ पे जो है ना स्पीड लिमिट ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम इजीली एक शहर से दूसरे शहर टाइमली पहुंच सकते हैं। ला आटोस्ट्रादा नन आ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਬੇ ਅਵੇਰੇ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾ ਆਟੋਸਟਰਾਦਾ ਦੀ। ਲਾ ਆਟੋਸਟਰਾਦਾ ਨਨ ਆ ਆਟੋਸਟਰਾਦਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਕਰੋਚੋ ਰਾਜ਼ੋ ਕਿ ਲਾ ਐਟਰਾਵਰਸਾਨੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੋਚੋ ਰਾਜ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਚ ਕਾਰੀ ਜਾਤੇ ਸਪਰੈਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अलग-अलग ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਟੋਸਟਰਾਦਾ ਡੋਪੀਓ ਸੈਂਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰੇ ਜਾਤੇ ਚ ਡੋਪੀਓ ਸੈਂਸੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। La autostrada è dotata di speciali corsie। autostrada dotata ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ speciali corsie special track per l'ingresso एंटर होने वास्ते ਇਹ ਲਾਓ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਹੀਕੋਲੀ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਜ਼ਿਓਨੇ ਔਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਡੀਚਲਰੇਜ਼ਿਓਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਗਰੇਸੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਜ਼ਿਓਨੇ ਪਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਡੀਚਲਰੇਜ਼ਿਓਨੇ। La autostrada è accarreggiata indipendenti o separate। इंडिपेंडेंटी यानी वो किसी और ते डिपेंड नहीं करते अलग अलग हुंदे ने ਉਹ ਸੈਪਰੇਟੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਸਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਨਾਲ। ਸਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਸ਼ੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰੀ ਜਾਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਨਾਲ अलग अलग किया जाता है। दिखा दूं आटोस्ट्रादा ये पता है सब वैसे ट्रैवल तो करते ही हैं। दीदी पता है। ओके ई मोतो चीकली। अच्छा चलो अब ये खुल ये एक दफा देख लेंगे ना तो जरा क्लियर हो जाएगा। ये आटोस्ट्रादा है जी। सिस्टम डाउन है आज। ये आटोस्ट्रादा है। आटोस्ट्रादे के दरमियान में ये देखें इसके कारी जाते दोनों अलग अलग होते हैं ठीक है। एक जाने वाला होता है और एक आने वाला होता है। दरमियान में ये देखिए ये ग्रीन पौधे लगे हुए हैं स्पार्टी ट्रैफिको है या फिर ये ऐसे लोहे के बैरियर लगे हुए होते हैं ठीक है जी। इसमें यानी कि इसमें फिर गजाला इसमें फिर हम लोग वो कर सकते हैं ना ओवरटेक क्योंकि इसमें लाइंस जो है वो कट करके लगी हुई है तो फिर इसमें ओवरटेक कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। आटोस्ट्रादे पे ओवरटेक करने की इजाजत होती है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। ई मोटोचिकली कुन चिलेंद्राता एक मोटरसाइकिल जो मोटरसाइकिलें हैं कुन चिलेंद्राता जिनका सिलेंसर या जिनकी इंजन दी अल्मेनो का मतलब है कम से कम 150 सेंटीमीटर क्यूबिक की पोसोनो चिरकुलारे चल सकती है इन आटोस्ट्रादे पर। याद रखें चीक्लोमोटोरी जिसका चिलेंद्राता जो है ना 50 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता वो नहीं चल सकती और माखीने एग्रीकोले वो भी नहीं चल सकते। सिर्फ मोटोचिकली जिनका जो इंजन है वो 150 सेंटीमीटर है सिर्फ वो आटोस्ट्रादे पे चल सकती हैं छोटी गाड़ियों में से ठीक है। इसको आपने मिक्स नहीं करना चीक्लोमोटोरी के साथ।
चीक्लोमोटोरी अलग है, मोटोचिक्ली अलग है. Le macchine agricole non possono circolare in autostrada. ऑटोस्ट्रादा पर नहीं चल सकते जो एग्रीकल्चर वाली गाड़ियां या ट्रैक्टर वगैरह. अब यहाँ मैं बताती चलूं कि ये क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि इनकी स्पीड जो है मैक्सिमम 40 होती है. इस वजह तो है ऑटोस्ट्रादे ते नहीं चल सकती हैं. ठीक है. और ऑटोस्ट्रादे पे जो स्पीड 130 ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਦੀ ਸਪੀਡ 130 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ 80 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ. ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਦੀ 130 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਨਨ ਟੂਤੀ ਈ ਟੀਪੀ ਦੀ ਵਹੀਕੋਲੀ ਕਿ हर टाइप ਦੀ ਗੱਡੀ नहीं चल सकती. नन वो सोनो नहीं चल सकती circolare in autostrada autostrade पे. अब ये क्यों कह रहा है कि नन टूती ई टीपी दी वहीकोली possono circolare, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ macchine agricole, ciclomotori, quadricicli leggeri ਇਹ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਂਗਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸਾਈਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਤੇ. ਲਾ ਓਸ਼ੀਤਾ ਦੀ ਵਹੀਕੋਲੀ della autostrada, ਲਾ ਓਸ਼ੀਤਾ ਦੀ ਵਹੀਕੋਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ delle autostrada ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਤੋਂ avviene termite, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ डिcelerazione ਦਾ ਟਰੈਕ. avviene termite स्पेशल बने होंगे कुर्सिया दी डिcelerazione. ठीक है. La autostrada deve essere lateralmente recintata lateralmente साइडा तो recintata कवर किया होया. ऑटोस्ट्रादा जो है, ऑटोस्ट्रादा के जो कारें जाते हैं वो साइडों से कवर होते हैं ताकि हम उधर से बाहर ना निकल सकें, क्योंकि हम डायरेक्ट ऑटोस्ट्रादे से बाहर एग्जिट नहीं कर सकते. पता ऑटोस्ट्रादे पे वो उसको क्या कहते हैं, वो बने हुए होते हैं जहां से हमने टिकट लेनी है और फिर आगे जाके जहां से हमने निकलना होता है वहां पे हमने वो पे करना होता है, तो फिर हम वहां से बाहर निकल सकते हैं. ऑटोस्ट्रादे से डायरेक्ट हम बाहर नहीं निकल सकते. तो ये उसके बारे में कह रहा है कि ऑटोस्ट्रादा deve essere lateralmente साइडों से recintata कवर किया हुआ. ठीक है. nelle autostrada possono circolare solo le autovetture. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ऑटोवेटूरे किसको कहते हैं? ऑटोवेटूरे कारों को, गाड़ियों को इस तरह से कहते हैं, कारों को कहते हैं. nelle autostrada ऑटोस्ट्रादे से possono circolare चल सकते हैं solo सिर्फ, ले autovetture सिर्फ कारें. तो ये सवाल गलत हो गया, क्योंकि वहां पे ट्रक भी चल सकते हैं, मोटरसाइकिल भी चल सकती है, कारें भी चल सकती हैं, बसें भी चल सकती हैं. तो ये सोलो की वजह से ये सवाल गलत हो गया. nelle autostrade possono circolare, अब इतना सवाल वही है. ठीक है. मतलब वही है. nelle autostrade के ऑटोस्ट्रादे च possono circolare चल सकते हैं tutti i tipi di motocicli. अब इसमें वो कह रहा है कि हर टाइप की मोटरसाइकिल चल सकती है. ये फाल्स हो गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले मेंशन कर दिया है कि सिर्फ 150 जिसका वो होगा ना इंजन की पावर, हाँ 150 या 150 से ऊपर सिर्फ वो मोटरसाइकिलें चल सकती हैं ऑटोस्ट्रादे पे. ला ऑटोस्ट्रादा पो कंप्रेंद्रे, ऑटोस्ट्रादा पो कंप्रेंद्रे ऑटोस्ट्रादे में शामिल हो सकता है पिस्ते चिक्लाबिले, साइकिल चलने का रास्ता. हो सकता है? नहीं. किस में हो सकता है? पिस्ते चिक्लाबले किस में होते हैं? उसमें स्ट्रादा जो होता है, स्ट्रादे में. बिल्कुल. अब ये सवाल को आपने जहन में रखना है. अक्सर ये क्वेश्चन आता है और हम वो स्ट्रादा समझ के तो हम इसको वेरो कर देते हैं, और ये 80% लोगों का ये सवाल जो है वो गलत होता है. इसमें है ऑटोस्ट्रादा, इसमें ऑटोस्ट्रादे की बात कर रहा है. ठीक है. पहले ऑटोस्ट्रादे बंदा जल्दी
जी मैंने कहा वो बंदा जल्दी में गलत भी कर सकता है, आतोस्त्रादा और स्त्रादा को समझ के ना, आतोस्त्रादा तो वो हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है और जल्दी में ही होता है। और अक्सर जल्दी में मैं यही अपना एक्सपीरियंस साथ साथ शेयर करती जाऊंगी कि हम लोग जब स्केदा करते थे ना तो यही होता था, अक्सर जल्दी में हम नन वाला लफ्ज नहीं देखते थे। कई सवालों में नन लिखा होता है सेंटर में, तो वो हमें पता नहीं चलता था, हम उसको वेरो कर देते थे, बाद में पता चलता था कि नन की वजह से फाल्स है, जैसे ये सिर्फ सोलो की वजह से फाल्स हुआ है। हाँ। बहुत सारे सवाल सिर्फ एक एक लफ्ज की वजह से जो है ना वो गलत है। Nelle autostrada possono circolare, autostrade पे चल सकते हैं ई चीक्लोमोटोरी ई मोटोचिकली। अब ये दोनों के बारे में बता रहे हैं कि चीक्लोमोटोरी भी चल सकती है। चीक्लोमोटोरी वो होती है जिसका इंजन जो है 50 सेंटीमीटर सिर्फ होता है। ई मोटोचिकली कौन चिलेंद्र आता। फीनो, फीनो का मतलब होता है कि तक, जिसका इंजन पावर जो है 125 सीएम तक होगा तो वो चल सकता है। ये बात सही है गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि 150 सीसी वाला चल सकता है, 125 नहीं चलूगा। बिल्कुल ठीक। और चीक्लोमोटोरी तो चल ही नहीं सकती। हाँ जी, क्योंकि ਇਹਦਾ 50 सीसी तक ही ਹੁੰਦਾ हाँ है, जी, तो मतलब अब ये power। देखें, आधा सवाल पढ़ के हमें समझ आ जाएगी ये सवाल गलत है, क्योंकि इसने पहले ही चीक्लोमोटोरी का कह दिया और चीक्लोमोटोरी का हमें पता है कि उसका इंजन पावर जो है वो सिर्फ 50 है। Nelle autostrade possono circolare solo lì autoveicoli, वो कह रहे हैं कि सिर्फ गाड़ियां चल सकती हैं। ठीक है, ऑटो व्हीकली आगे चल के मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। वो गाड़ियां जिसके सिर्फ 4 पहिए, 4 या 4 से ज्यादा होते हैं, 4 से कम वाली नहीं होती। वो कह रहा है कि सिर्फ गाड़ियां चल सकती हैं। नहीं जी, यहाँ पे बसें भी चल सकती हैं, यहाँ पे ट्रक भी चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोटोचिकली भी चल सकती है। Nelle autostrade possono circolare tutti i motocicli e i ciclomotori, सेम वही बात कर रहा है कि हर टाइप की मोटरसाइकिल और जो है मोटरीनी वो चल सकती है। ये बात गलत है, सिर्फ मोटरसाइकिल वो चल सकती है जिनका चिलंदराता 150, कम से कम 150 हो। हाँ जी, इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ समझ ना आई हो? ठीक है, आगे चलें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। आगे है स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले। अब ऑटोस्ट्रादा क्या था? ऑटोस्ट्रादा एक ऐसा रोड था जो कि पेड़ होता है। ठीक है, ऑटोस्ट्रादे पे जितने भी सिग्नल मिलेंगे आपको सब्ज कलर के मिलेंगे। ये छोटी छोटी बातें साथ साथ लिखते जाना और जहन में रखते जाना है। ठीक है, उस पे जितने भी बोर्ड आपको मिलेंगे, चाहे वो किलोमीटर वाले हैं, चाहे कोई भी किलोमीटर वाले हैं, या डेस्टिनेशन का बता रहे हैं, कुछ भी है, वो सारे आपको सब्ज कलर में मिलेंगे। ये है स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले। स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले कहते हैं tangenziale। ठीक है, ये भी होता ऑटोस्ट्रादे की तरह ही है। इसके भी 2 सेपरेट कारी जाते होते हैं। ठीक है, और कम से कम 2 कुर्सियां लाजमी होते हैं। ठीक है, 2 कुर्सियों से कम नहीं होते ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले में। जो बाकी होते हैं ना, जो शहर के अंदर, शहर से बाहर, जो गांव में जो छोटे रोड होते हैं, वहां पे कई दफा सिर्फ 2 कुर्सी होते हैं दोपियो सेंसर के लिए, लेकिन यहाँ पे एक तरफ जाने के लिए कम से कम 2 कुर्सी होते हैं, 2 ट्रैक होते हैं। ठीक है, इसमें कारी जाता अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, और ये पेड नहीं होता, ये बगैर पेमेंट के होता है, ये तंजन से आल है लस्त्रादा एक्स्ट्रा। और इस पे जितने भी आपको बोर्ड मिलेंगे ना वो सारे ब्लू कलर के मिलेंगे। स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे जितने भी रोड हैं वो सारे ब्लू कलर के मिलेंगे, नीले कलर के। लस्त्रादा इसकी पिक्चर दिखा दे, इसकी पिक्चर प्लीज अगर दिखा दे एक्स्ट्रा उर्बाने। मैं दिखा देती हूँ। अक्सर स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपल जहां से शुरू हो रहा होता है ना, उसके शुरू में ये वाला बोर्ड भी लगा हुआ होता है।
यहाँ से पता चलता है, ये इस निशान का मतलब होता है कि दो कारी जाते अलग अलग हैं और स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले शुरू हो गया। ये देखें, ये भी सेम आतोस्ट्रादे की तरह ही होता है। इसमें भी जो है वो दरमियान में स्पार्टो ट्रैफिक होता है, कारी जाते सेपरेटे होते हैं, हम ये ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें हम यू टर्न भी नहीं कर सकते, ना आतोस्ट्रादे पे यू टर्न कर सकते हैं, ना स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे। और आतोस्ट्रादे पे अगर किसी ने गलती से यू टर्न कर लिया तो वहां उसका जो है ना पेटेंटे जो है ना वो लोग ले लेते हैं। ये देखें, ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे जितने भी वो बोर्ड होंगे ये सारे ब्लू कलर के होंगे। ये भी स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले का है, ये भी स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने, ये भी आतोस्ट्रादे की तरह ही होता है, कारी जाते अलग अलग, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि एक तरफ जाने के लिए कम से कम 2 कुर्सी होते हैं, ठीक है, 2 कुर्सियों से कम नहीं होगा इसमें। तो जो आतोस्ट्रादा होता है उसमें 2 कुर्सियां नहीं होती? उसमें तो ज्यादा होते हैं, उसमें दो भी हो सकते हैं, उसमें 3 भी 4 भी हो सकते हैं। क्योंकि आतोस्ट्रादा ज्यादा चौड़ी होती है, ज्यादा बड़ी होती है। आतोस्ट्रादा में 2 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें भी स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले में भी 2 या 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 ही होते हैं। La strada extraurbane principale sono a carreggiata separate, यानी इसमें भी कारिजाते जो हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। La strada extraurbane principale sono dotate di opposite special area di sosta, dotate रखे होते हैं या बने होते हैं, di opposite special खास आरिया दी सोस्ता, पार्किंग के लिए आर्य है। ये पियाज़ोला दी सोस्ता के बारे में बात कर रहा है। पियाज़ोला दी सोस्ता का पता है आपको? हाँ जी, दिखाया था ना मैंने उस हाँ दिन, जी, जो आतोस्ट्रादे पे भी बना होता है और एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे भी बना होता है। हाँ जी, साइड पे। हाँ जी, साइड ਤੇ एक छोटी सी जगह खुली सी बनी ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। emergency है। La strada extraurbane principale non ha incroci a raso, ਆਤੋਸਟਰਾਦੇ की तरह ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ੋ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ le attraversano ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੋਵੇ। Le strade extraurbane principale sono segnalate, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਤੰਜੈਂਸੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤੇਲੀ ਦੀ ਸਟਰਾਦਾਲੀ, यानी उत्थे करतेलियां होंदियां ना, ਜਿਹੜੇ ਇਹ बोर्ड ने स्ट्रादाली रोडा ते दी इनिशियो शुरुआत ए फीने और खत्म होना, यानी जो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे वो जो मैंने अभी आपको करतेली दिखाई थी कि अक्सर स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले जब शुरू होता है तो ये करतेली लगी हुई होती है, ये बोर्ड लगा हुआ होता है। तो बोर्ड शुरू जाते हो खत्म दा लगे होंदा है, खत्म जिथे होएगा और निशान के ऊपर रेड कलर की लाइन लगी, ठीक है, उत्थे पता चल जाएगा कि इथों तंजनशाल खत्म हो गया। Nella strada extraurbane principale तो सोनो circolare चल सकते हैं सोलो सिर्फ अल्कोने यहाँ पे आपका ट्रिक आ गया, मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिक है अल्कोने, ये वाला जहां कहीं भी आ गया पतंते में बुक में ये सवाल भी हो जाएगा। सोलो सिर्फ अल्कोने कैटेगोरी दी वेहिकोली सिर्फ कुछ टाइप दी गड्डियां तंजनसियाल ते चल सकदियां ने इंजन वालियां, जैसे कि आतोस्ट्रादे पे है, इसी तरह एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे भी कुछ टाइप की गाड़ियां चल सकती हैं। कौन कौन सी नहीं चल सकती वो फिर आगे बता देगा। इस पे भी वो चीटी मोटोरी नहीं चल सकती, माकिने एग्रीकोले, ये चीजें जो है ना साइकिले। Nella strada extraurbane principale possono trovare के तंजनसियाल च possono trovare मतलब मिलेंगे इंटरसेक्शनी चौक, a livelli सफलसाती ऊपर नीचे वाले चौक रोडे।
यहाँ पे इनक्रोचो राजो नहीं मिलेगी, लेकिन लिवेली सफलसाती आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जबकि आतोस्ट्रादा पे ये दोनों नहीं होंगी, ना लिवेली सफलसाती और ना वो दूसरी है, वो दोनों नहीं होंगी। नहीं हाँ दोनों ही नहीं होंगी। ऑटोस्ट्राडा मोस्टली जो है ना वो नीचे रोड पे ही होता है, लेकिन कुछ ऑटोस्ट्राडे ऐसे हैं कि जो ऐसे यानी वो जमीनी रास्ते कुछ इस तरह के हैं कि कुछ ऊंचाई पे और इस तरह से, लेकिन इनक्रोचो राजो दोनों पे नहीं मिलेगी, लिवेली सफलसाती दोनों पे मिल सकती है। ऑटोस्ट्राडे पे भी लिवेली सफलसाती मिल सकती है। Le strade extraurbane principali sono provvisite tangenzial पे स्पेशल प्रोवाइड किए हुए, प्रोविजिटे प्रोवाइड किए हुए होते हैं, मुहैया, प्रोविजिटे मुहैया या प्रोवाइड दी कुर्सी दी एक्सेलरेजियोने per el ingreso एंटर होने के लिए एक्सेलरेजियोने वाले ट्रैक, जैसे ऑटोस्ट्राडे के लिए होते हैं वैसे ही एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले के लिए भी होते हैं। corsia di accelerazione, corsia di decelerazione, दोनों ही। Sulle strade extraurbane principali tangenzial पर एक consentito इजाजत है circolare चलने की, alla velocità स्पीड पे, massima ज्यादा से ज्यादा di 130 किलोमीटर per orare, 130 की स्पीड पे चलने की इजाजत है। ये सवाल गलत है क्योंकि 130 की स्पीड सिर्फ ऑटोस्ट्राडे पे होती है। एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 है। ठीक है, ले स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले सोनो contraddistinti da segnalate verde। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले जो जिसकी निशानदेही की जाती है सिग्नलों से सब्ज कलर के, तो ये भी सवाल गलत है। मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे जितने भी आपको सिग्नल मिलेंगे सारे ब्लू कलर के मिलेंगे, तो ये वेरदे से याद रखना है कि एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे ब्लू कलर के होते हैं, वेरदे आए तो सवाल गलत। ठीक है, La strada extraurbane principale possono essere tangenzial पे possono essere हो सकता है ad unica carreggiata। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, उन unica carreggiata के हो सकता है सिर्फ एक ही carreggiata हो, ये गलत है। मैंने आपको बताया कि इसके carreggiate अलग अलग होंगे, जिस तरह ऑटोस्ट्राडे पे एक carreggiata जाने के लिए तो दूसरा carreggiata आने के लिए होगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही carreggiata हो सकता है, तो ये गलत है। इसमें दो carreggiate होते हैं और अलग अलग होते हैं। Sulle strade extraurbane principale è consentito tangenzial पे इजाजत है circolare चलने की alla stessa velocità, सेम स्पीड पर, massima ज्यादा से ज्यादा, prevista per le autostrada जितनी स्पीड प्रोवाइड की गई है ऑटोस्ट्राडे पर, तो ये सवाल भी गलत है क्योंकि एक्स्ट्रा tangenzial पे 110 स्पीड है, ऑटोस्ट्राडे पे 130 है, तो उसी सेम स्पीड पे हम tangenzial पे नहीं चल सकते। समझ आई है इस सवाल की ना? जी जी। Sulle strade extraurbane principale tangenzial पर i quadricicli leggeri possono transitare, जो क्वाड्रिचिकली 4 टायरों वाली हल्की गाड़ी है possono transitare चल सकती है, तो ये सवाल गलत है। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि इसका जो इंजन है 50 सेंटीमीटर जैसे चिक्लोमोटोरी का होता है ना, इसी तरह क्वाड्रिचिकली लेजेरी का 50 सेंटीमीटर होता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है ना सिर्फ 45 होती है। तो जबकि tangenzial की स्पीड 110 है और इसकी 45 है, तो फिर ये बिल्कुल नहीं चल सकती। इस वजह से ये सवाल गलत हुआ है। आगे जाके हम गाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको उनकी स्पीडों का अंदाजा हो जाएगा। Le strade extraurbane principale hanno के tangenzial पे होता है una sola corsia पर ogni senso di marcia। अब ये सवाल समझने वाला है, वो कह रहा है कि una sola सिर्फ कुर्सिया, कि सिर्फ एक ही कुर्सिया होता है
per only, हर सेंसो, हर तरफ जाने के लिए। मैंने आपको पहले बताया है कि हर तरफ जाने के लिए कम से कम 2 कुर्सी होते हैं, 1 कुर्सियां नहीं होता। 2 कुर्सियां जाने के लिए, 2 कुर्सियां आने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये सवाल गलत है, क्योंकि वो कह रहा है una sola कुर्सियां। Sulle strade extraurbane principali tangenziali per i ciclomotori possono transitare, जो ਜਿਹੜੀ मोटरीनी है वो चल सकती है। नहीं जी, क्योंकि इसका भी सिलेंडर जो है सिलेंडर आता है 50 सेंटीमीटर और इसकी स्पीड भी मैक्सिमम 45 है, तो ये भी नहीं चल सकती। Nelle strade extraurbane principali non vi sono curve né dossi। अब वो क्या कह रहा है कि तंजेंशियल पे कुर्वे भी नहीं होंगे और दोसी मतलब कोई चढ़ाई वगैरह भी नहीं होगी, तो ये भी गलत है। तंजेंशियल पे कुर्वे भी आ सकते हैं, पहाड़ियां भी आ सकती हैं, ऊंचाई भी आ सकती है, उतराई भी आ सकती है। जैसे कि उसने बताया कि लिवेली सफल साथी आपको मिलते हैं, तो मुख्तलिफ हाइट्स के रोड भी आ सकते हैं, तो सारी चीजें वो उसमें मिलेंगी। इस वजह से ये सवाल गलत है। Le strade extraurbane principali devono essere dotate, इस पे लगी होती हैं या रखी होती हैं या बनाई होती हैं दी पनेली ए मसाजो, मैसेज वाली पनेलियां, वेरिएबली जो कि मुख्तलिफ मैसेज प्रोवाइड करती हैं। ये जो मसाजो वेरिएबली है ना, ये मैसेज वाली करटेलियां जो हैं सिर्फ ऑटोस्ट्रादे पे होती हैं। वो आगे यानी वो लिखा अक्सर मैसेज डिस्प्ले, अगर आप ऑटोस्ट्रादे पे ट्रैवल करें तो लाइटिंग जो है ना वो चल रही होती है, डिस्प्ले हो रही होती है और मैसेज चल रहा होता है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसके ऊपर चल रहा होता है कि आगे इतने मीटर पे एक्सीडेंट हुआ है, या कोई और जो है ना वो मैसेज नियरेस्ट लोकेशन का बता रहा होता है कि ये इतनी दूर है। तो ये सिर्फ ऑटोस्ट्रादे पे होती है, स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले पे ये वाली करटेलियां, ये वाली पनेलियां नहीं होती मैसेज वाली। इसकी समझ आ गई सबको? किसी का कोई सवाल? आगे चलते हैं इजोला दी ट्रैफिको। इजोला दी ट्रैफिको क्या होता है? ज्यादा तो नहीं हो गया आज के लिए? हाँ जी, वही ना, अभी मतलब इसको सही तरह, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, इसको थोड़ा समझ ले तो ये फिर। अभी आपको ना सुनने में इस तरह से लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे ना, कम से कम 2 दफा जरूर पढ़ा करें। ये इजोला दी ट्रैफिको छोटा सा है, तो आप जब खुद पढ़ेंगे ना फिर आपको समझ आ जाएगी। फिर नहीं समझ आएगी तो मैं कल भी एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आज ये थोड़ा सा पढ़ लें। ये देखें जी, ये है इजोला दी ट्रैफिको। ये जो पीला डंडा लगा हुआ है ना, ठीक है, और ये जो जगह ऊंची सी बनी हुई है, इसको कहते हैं इजोला दी ट्रैफिको। ठीक है, इसके ऊपर ये करतेली भी लगी हुई होती है, ये बताता है कि इस साइड से गुजरें। अब ये इजोला दी ट्रैफिको, ये भी ये यानी सड़क से ऊंचा भी हो सकता है इस तरह से, और सड़क के बिल्कुल बराबर भी हो सकता है इस तरह से, सिर्फ पेंट हुआ हुआ। ठीक है, अब इजोला दी ट्रैफिको है क्या? बेसिकली इजोला दी ट्रैफिको जो है वो ट्रैफिक को डिवाइड करता है मुख्तलिफ सिमतों में जाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे सी गाड़ी है, वो सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही आ सकती है, बी गाड़ी यहाँ से ए की तरफ जा सकती, ए गाड़ी यहाँ से सीधी जा, यानी इन लाइनों के ऊपर जो है वो गाड़ियां नहीं चल सकती। या अगर सी ने सीधा जाना है तो वो सीधा यहाँ से ऐसे क्रॉस, इजोला को क्रॉस करके नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसे ये जो सड़क से ऊंचा होता है, इसको भी गाड़ियां जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते, या उसके साइड से ही होके गुजरेंगी। ठीक है, और ये सड़क के सेंटर में होता है, ये सड़क के बाहर नहीं होता। ये 2 तरह के होते हैं, जो जमीनी होगा, जमीन के लेवल पे वो राजो होगा, उसको राजो कहेंगे, या वो लाइन सफेद लाइनों से बना हुआ होगा। जो जमीन से उठा हुआ होगा वो इस तरह से होगा। सिर्फ ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना स्केदा करते हैं। ला इजोला दी ट्रैफिको सेरवे खिदमत करता है, facilitare आसान बनाता है, ले इंक्लिनामेंटो दी वेहिकोली, इंक्लिनामेंटो यानी गाड़ियों के जाने की, वेरसो
डायरेक्शन में वेरी डायरेक्शनी, गाड़ियों के मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाने को आसान बनाता है। ठीक है, इंक्लिनामेंटो दी वेहिकली, गाड़ियों के आने जाने को, वेट्सो वेरई डायरेक्शने, वेरई डायरेक्शने, डायरेक्शन में मुख्तलिफ सिमतों में, जैसा कि मैंने आपको निशान से बता दिया। लाइजोला दी ट्रैफिको ए डेलिमिटाता, ये बना होता है दा स्ट्रीशे बियांका कंटिन्यूए, सफेद लाइनों से बना होता है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये बहुत आसान है। लाइजोला दी ट्रैफिको पो एसरे a राजो, राजो भी हो सकता है, ओ इन रिलीवो या फिर रियल जाता या फिर उच्चा भी हो सकता है। ठीक है, लाइजोला दी ट्रैफिको वेने एविडेंशिata mediante zebratura di colore bianco, लाइजोला दी ट्रैफिको एविडेंशिata यानी एदी निशानदही कीती हुंदी है, निशानदही एविडेंशिata mediante zebratura di colore bianco, ये पूरा जो है ना ये उन लाइनों का नाम है। mediante zebratura सफेद colore bianco, सफेद कलर की लाइनों से उसकी निशानदही की जाती है। ठीक है, इजोला दी ट्रैफिको è una parte della strada, स्त्रादे का हिस्सा है, सुले क्वाले जहां पर ए वियातातो मना है, इल ट्रांजिटो दी मोटोचिकली, मोटरसाइकिल के चलने की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ना गाड़ियां उस पर चल सकती हैं, ना मोटरसाइकिलें उस पर चल सकती हैं, उन निशानों के ऊपर नहीं चल सकती। ला इजोला दी ट्रैफिको ए राजो, जो यानी जमीनी है, जो सड़क के ऊपर पेंट होता है, एक कॉन्स्टिट्यूटा बना होता है द ज़ेब्रातुरा दी क्लोरे बियांको, ज़ेब्रातुरा यानी वो लाइनिंग को कह रहा है, लाइनों से सफेद, दी क्लोरे बियांको सफेद लाइनों से। ला इजोला दी ट्रैफिको से रियल जाता, अब वो क्या कह रहा है कि अगर इस ट्रैफिको से अगर रियल जाता ऊंचा हो, ए प्रेचेडूतो, तो उससे पहले द ज़ेब्रातुरा दी क्लोरे बियांको सफेद लाइनें लगी हुई होंगी। ठीक है, अगर ऊंचा हो ना तो उससे पहले भी सफेद लाइनें लगी हुई होती हैं थोड़े से एरिया में। ला इजोला दी ट्रैफिको è una parte della strada, इजोला दी ट्रैफिको स्त्रादे का हिस्सा है, सुले क्वाले जहां पर वियातातो मना है, इल ट्रांजिटो दी वेहिकोली गाड़ियों का चलना, उसके ऊपर गाड़ियां नहीं चल सकती। ठीक है, अब ये फाल्सो सवाल आ गए हैं। फाल्सो में वो क्या कहता है, लाइजोला दी ट्रैफिको सर्वे खिदमत करता है ए सेपरारे ला कारिजाता, और कारिजाते को अलग करता है डेले बंकीना, बंकीना से, यानी रोड के किनारे से कारिजाते को अलग करता है, तो ये गलत है क्योंकि इजोला दी ट्रैफिको सड़क के दरमियान में लगा हुआ होता है। ठीक है, ला इजोला दी ट्रैफिको सर्वे per il transito di pedoni, यानी जो इजोला दी ट्रैफिको है वो पैदलों के चलने के लिए होता है, तो ये भी गलत है, उस पर पैदल भी नहीं चल सकते, वो सिर्फ होता है गाड़ियों को मुख्तलिफ डायरेक्शन में भेजने के लिए। अब ये क्या कह रहे हैं, ला इजोला दी ट्रैफिको ए una piazzola di sosta, यानी ये वो एरिया है जहां पर पार्किंग कर सकते हैं गाड़ियां, तो ये भी गलत है, यहाँ पे गाड़ियां पार्क भी नहीं कर सकते, ये पियाज़ोला दी सोस्ता नहीं है। पियाज़ोला दी सोस्ता ऑटोस्ट्रादे पे होता है, स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे होते हैं। ला इजोला दी ट्रैफिका पो एसरे परकोर्सा सोलो दी टैक्सी, जहां पर पो एसरे परकोर्सा चल सकती है सोलो, सिर्फ टैक्सी, ऑटो बस। ठीक है, वो कह रहे उर्बानी, वो कह रहे कि इजोला दी ट्रैफिको वो एरिया है जहां जिसके ऊपर सिर्फ बस और टैक्सी चल सकती है, तो ये भी गलत है, उस पर कोई ट्रैफिक चल ही नहीं सकती। ला इजोला दी ट्रैफिको è la parte della città, सिटी का हिस्सा है, उन मेजोरे ट्रैफिको जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, तो ये भी गलत है, यानी ये सिटी का वो हिस्सा है जहां पर ज्यादा ट्रैफिक होती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये हर जगह पे ही होता है, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है या नहीं है, हर शहर में होता है, हर जगह पे होता है, हर सड़क पे होता है। ला इजोला दी ट्रैफिको क्रॉसपेंडे
इजोला di traffico मौजूद होता है इन जेनेरे आमतौर पर अल चेंट्रो सेंटर में, स्टोरिको डेला चीटा, जो कदीमी शहर होते हैं ना स्टोरिको डेला चीटा, ये उनके सेंटर में होता है। ये चेंट्रो में समझ लो कि शहर के चेंट्रो में होता है, तो ये भी गलत है। ये सड़क के सेंटर में होता है, ना कि शहर के सेंटरों में होता है। La isola di traffico è una piazzola पर हमारे इन्वर्सियोने कहते हैं यू टर्न करने को। वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी जगह बनी हुई होती है पर एफिटुआरे करने के लिए इन्वर्सियोने यू टर्न दी मार्चा, ठीक है। जबकि ये यू टर्न के लिए हमने सिंपल सी बात याद रखनी है जहन में कि इजोला क्या है। इजोला सिर्फ सफेद कलर के निशानों का बना हुआ होता है, सड़क से ऊंचा भी हो सकता है और सड़क के ऊपर पेंट भी हो सकता है, और ये सिर्फ गाड़ियों को मुख्तलिफ डायरेक्शन में भेजता है। उसके अलावा इजोला कुछ नहीं है। बाकी जो बातें भी कर रहे हैं वो सारी गलत है। La isola di traffico è posta, लगा होता है दी फोरी डेला स्ट्राडा, रोड के बाहर। ये काफी ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल में बस इतना ही करते हैं, फिर ये पूरा नहीं करते क्योंकि इसके फाल्सो सवाल काफी ज्यादा है। अब स्केदा कर लें। वैसे इजोला दी ट्रैफिका की समझ आई है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ गई है? गजाला, वो मैं ना बीच में मेरी कॉल आ गई थी तो मेरा कैमरा गलती से ऑन हो गया था, तो प्लीज अगर उसको एडिट करके यूट्यूब पे अगर डालनी हुई तो डाल दीजिएगा थोड़ा सा काट के। ओके, चलो मैं पहले चेक कर लूंगी, अगर कोई ऐसा कुछ नजर नहीं आया तो फिर ऐसे डाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं कट करूंगी तो उधर से वो थोड़ा सा वो भी मैं चेक कर लूंगी। हाँ जी, क्योंकि वो दोबारा मैंने ज्वाइन किया ना तो वो कैमरा ऑन हो गया तो मुझे समझ ही नहीं लग रही थी, वो कॉल आ गई थी बीच में तो। ठीक है, और वैसे भी वो स्काइप वाली स्क्रीन जो है वो डाउन हुई भी होती है, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लूंगी, कोई स्टिकर वगैरह लगा दूंगी या कुछ ऐसे। हाँ जी सर। वैसे तो कुछ नहीं नजर आ रहा सी, किचन ही नजर आ रही सी साडी। नहीं थोड़ा फेस नहीं नजर आया, किचन ही नजर आई। अच्छा जी, स्केदे में कौन कौन आएगा? हाँ जी, स्केदे में सबने आंसर देने, ठीक है। आंसर देंगे तो फिर एटलीस्ट ये होता है वक्ती तौर पे आपको ये लग रहा होगा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन जब आप जवाब देंगे ना तो फिर उसी से पता चलेगा कि हाँ जी कितनी समझ आई है। नहीं सिस्टर, बहुत अच्छी समझ आंदी, जो भी ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਐਨ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ। अच्छा चलो फिर तो ਐਵੇਂ ਦੀ बहुत ਕੋਈ अच्छी ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ समझ नहीं आंदा, बाकी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨ ਵਧੀਆ ਆਂਦਾ। चलो फिर तो मैं बहुत ਤਾਂ ही अच्छी कुछ बात। बोलदी नहीं, मैं चुप करके सुनती रहनी। नहीं सुनो, और जितनी समझ नहीं आती दोबारा पूछो, मैं हाँ जी, दोबारा नहीं भी नहीं ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, की नाम है दीदी ਤੁਹਾਡਾ? राजविंदर राजविंदर। चलो पहले 3 सवाल का तुसी जवाब दो जी। ओके। La intersezione a livelli falsati। अच्छा नजर आ रही है स्क्रीन? पूरी क्लियर नहीं आंदी, पता नहीं कि मेरे फोन ते नहीं आंदी मैनू। और नहीं है, क्लियर है। अच्छा, वो मैंने कहा नहीं तो मैं आप लोगों से ही पढ़ाती, लेकिन चलो। La intersezione incrocio a livelli falsati। अब ये livelli falsati चौक के बारे से गल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। Facilita la circolazione perché esclude incrocio diretto fra i veicoli, vero o falso? फाल्सो। पक्का? कितना फाल्सो है? ये वेरो है, क्योंकि उन्होंने बताया जो था कि ये दरीतो फ्राई विकोली होता है, जो लिवेली सफलसाती होता है। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि इंटरसेसियोने लिवेली सफलसाती है वो चौक है फाचलिता जो कि आसान करता है चिरकलाजोने चलने ਨੂੰ करके, क्योंकि और च गड्डियां दी डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं हुंदी गड्डियां दे दरमियान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो हाँ है जी। वेरो है। सोच के जवाब दसना है वेरो या फाल्सो, फिर मैं भी पूछना है कि वेरो क्यों है तो फाल्सो क्यों है। बिल्कुल
La intersezione a livelli falsati è munita di infrastrutture, rampe, sovrappassi, sottopassi per il collegamento fra strade, poste e livelli diversi. वेरो Vero, vero क्यों है? मतलब क्योंकि वो मतलब ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮਪੇ हाँ जी, और दस रहे है कि लिवेली सफल साथी च ए रामपे, सोवरापासी, सोतोपासी होंदे ने। जी ओके जी। La intersezione a livelli sefal sati comprende strade situate ad altezza diverse. मतलब ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, वेरो vero, बिल्कुल ठीक। सना आप आ जाओ जी। La intersezione a livelli sefal sati è di norma regolata da semaforo. ये फाल्सो होगा क्योंकि सेमाफोरो जो होता है वो तो उसमें होता है, जो दूसरी लिवेली होती है उसमें होता है, इसमें नहीं होता है। राजों में होता है। हाँ जी राज। ये फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन, nel intersezione a livelli sefal sati non valgono i limiti massimi generali di velocità. ये वेरो है फाल्सो है? सना ये फाल्सो होगा फाल्सो क्यों होगा? क्योंकि इसमें बताया गया कि ये लिमिटेड मैक्सिमम स्पीड नहीं इसमें बताई जाती कि कितनी रखते हैं, लेकिन इसमें बताई जाती है, इस वजह से फाल्सो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, la intersezione a livelli falsati comprende rampe, sovrappassi o sottopassi. वेरो बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट आ जाओ दविंदर। La intersezione a livelli falsati è un incrocio a raso fra una strada e binari del treno. फाल्सो Falso. बिल्कुल ठीक। दविंदर अगले दो क्वेश्चन। I motocicli con cilindra di almeno 150 cm possono circolare in autostrada. वेरो Vero. L'autostrada non ha incrocio a raso che la attraversano. वेरो वेरो Vero? क्रॉसिंग नहीं ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ हाँ जी, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। आगे आ जाओ करमजीत। L'autostrada è dotata di speciali corsie per ingresso e la uscita di veicoli. वेरो Vero? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਮਜੀਤ। La autostrada deve essere letteralmente recintata. ਕਰਮਜੀਤ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਸਟਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वेरो वेरो वेरो। आगे आ जाओ जी रजविंदर। हाँ जी Non tutti i tipi di veicoli possono circolare in autostrada. वेरो फाल्सो ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆਟੋਸਟਰਾਦਾ हाँ तो बिल्कुल ठीक है ना, ये वेरो ठीक है क्वेश्चन ना है। फिर नहीं चल सकते मतलब नन सब तरह की नहीं ना गाड़ियां चल सकती, तो उन्होंने भी तो नॉन नहीं लिखा ना। ਹਾਂ उन्होंने शुरू में ये देखो ना नन लिखा है, non जी। tutti i tipi di veicoli. Rajvinder, la autostrada può comprendere pista ciclabile. फाल्सो Nelle autostrade possono circolare i ciclomotori e i motocicli con cilindrata fino a 125 cubic metro. फाल्सो ओके, आगे और कौन है? सुमन। जी Le macchine agricole non possono circolare in autostrada.
non possono non possono, vero la mattina, vero है vero है, हाँ जी क्योंकि माकिना एग्रीकोला मैंने बताया इसकी स्पीड जो है ना मैक्सिमम इसकी स्पीड सिर्फ 40 ਹੁੰਦੀ है, ऑटोस्ट्रादे हाँ। ते 130 स्पीड ਹੁੰਦੀ है। vero La uscita di veicoli delle autostrada avviene tramite corsie di decelerazione, ठीक है vero vero बने ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ हाँ जी। La autostrada è accarreggiata indipendente o separata dal sparti traffico, vero वेरो बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, और कौन है कॉल में? और किन्ने आंसर नहीं दिता? मैंने नहीं दिया अभी। अच्छा, फरा आई है, ओके जी, फरा आ जाओ। Nelle autostrade possono circolare tutti i tipi di motocicli, falso falso. Nelle autostrade possono circolare tutti i motocicli e i ciclomotori, falso nelle autostrade possono circolare solo le autovetture, falso nelle autostrade possono circolare solo gli autoveicoli, falso falso, ओके जी, चेक कर लो सारे सही हैं, किसी ने कोई गलत जवाब तो नहीं दिया? फरा चेक करो, ये सारे ठीक है। सारे ठीक है पक्का? जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बान है। और कौन रह गया जिसने आंसर नहीं दिया? मैं ख्याल में सबने दे लिया एक एक बार। जी हाँ जी, चलो अब हाँ जी, हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? चलो इसके सारे आंसर देंगे। Sulle strade extraurbane principali è consentito circolare alla stessa velocità massima previste per le autostrade। सबकी आवाज आनी चाहिए। Le strade extraurbane principali hanno una sola corsia per ogni senso di marcia। falso हाँ फाल्सो, क्यों है फाल्सो? क्योंकि इसमें सिर्फ एक वो नहीं होता कुर्सियाँ, इसमें एक से ज्यादा कुर्सी होते हैं बिल्कुल। एक्स्ट्रा। कम से कम 2 Le strade extraurbane principali sono previste di corsie di accelerazione per l'ingresso। vero vero बिल्कुल। Nelle strade extraurbane principali si possono trovare intersezioni e livelli falsati। vero falso vero फाल्सो किसने कहा है? मैंने बोला है। ये वेरो है, क्योंकि इसमें इनक्रोचो राजो नहीं होते, लेकिन लिवेली सफलसाती हो सकता है, क्योंकि इसमें पुल शुल भी आ सकते हैं, रोड ऊंची नीची हो सकती है। Le strade extraurbane principali sono contraddistinte da segnaletica verde। फाल्सो falso क्यों फाल्सो होगा? क्योंकि इसमें क्योंकि ब्लू होता हाँ है, हरा ब्लू तो ब्लू Sulle strade extraurbane principali i quadricicli leggeri possono transitare। falso ये क्यों फाल्सो हुआ है? क्योंकि ਕੁਆਦਰੀਚਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਜੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ 110 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ छोटा है ਇਹਦਾ ਸਿਲੰਡਰਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੈ 50 है, ठीक हो गया। Le strade extraurbane principali sono a carreggiata separate। vero Vero। बाकी सारे भूल गए। Le strade extraurbane principali devono essere dotate di pannelli a massaggio variabile। falso falso है falso, बिल्कुल ठीक। Sulle strade extraurbane principali è consentito circolare alla velocità massimo di 130 km/h। falso
कितनी होती है स्पीड? 100 तो आती है 110 110 हाँ जी 110। प्रिंसिपाले तंजेंशियल पे 110, मोटरवे पे ऑटोस्ट्रादे पे 130। La strada extraurbana principale non ha incrocio raso che le traversano। वेरो हेरो वेरो, इसमें राजो नहीं होती, ना इसमें होती है ना ऑटोस्ट्रादे में होती है। Le strade extraurbane principali sono dotate di opposite aria di sosta। वेरो 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 दोनों पे होते हैं, ऑटोस्ट्रादे पे भी और स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले पे भी। पेज़ोला दी सोस्ता जिसको कहते हैं। Le strade extraurbane principali possono essere ad unica carreggiata। फाल्सो क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा रोड होते हैं कार्य रोड जगह ये 92 तक है। क्योंकि इसके हमेशा 2 carreggiate होते हैं और अलग अलग होते हैं, सिर्फ एक carreggiata नहीं हो सकता आने जाने के लिए। Sulle strade extraurbane principali i ciclomotori possono transitare। also Nelle strade extraurbane principali possono circolare solo alcune categorie di veicoli a motore। वेरो 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 क्यों हुआ? क्योंकि अल्कोने में आपने कहा है जहाँ पे भी आएगा वहां पे वेरो होगा। और वेरो दूसरा होगा। इसका क्या है कि खास किस्म की, जब सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं वो होता, अल्कोनी कैटेगरी की व्हीकल के लिए नहीं होता सिर्फ हाँ, मोटरसाइकिल। यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ अल्कोने कुछ कैटेगरी की गाड़ियों के लिए होता है, कुछ इंजन वाली गाड़ियों के लिए होता है। तो अल्कोने जहां पे भी आना है, पूरी बुक में कोई भी सवाल आप पढ़ो या ना पढ़ो, उसकी आपको समझ आए या ना आए, लेकिन ये वाली स्पेलिंग लिखे हुए हो अल्कोने के तो आपने सवाल वेरो कर देना। Nelle strade extraurbane principali non vi sono curve né dossi। Also, le strade extraurbane principali sono segnalate di cartelli stradali di inizio e fine। वेरो, यानी इस पे करतेली लगी हुई होती है शुरू होने की और एंड होने की। बिल्कुल ठीक। बाकी वो जो इजोला दी ट्रैफिक है वो कल कंप्लीट करेंगे, तो फिर कल उसका इंशाल्लाह स्केड़ा करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई नहीं समझ आई तो पूछ सकता है। ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਕੰਜਨ ਸਿਆਲ ਕੁਛ ਇਵੇਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ? ਤੰਜਨ ਤੰਜਨ ਸਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਉਰਬਾਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਾਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਓਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਮਤਲਬ ਉਰਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ जी एक्स्ट्रा उर्बाने का वैसे मतलब यही है शहर तो बाहर, ठीक है। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਰਬਾਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਾਲੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਜਨ ਸਿਆਲ। ओके ठीक है। हाँ जी, सब पाकिस्तान में भी हाईवे भी होता है और मोटर में भी होता है। तो सिंपल के लिए हाईवे होता है और दूसरा जीटी रोड होता है, अक्सर मुल्कों में जीटी रोड भी कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ कि जीटी रोड से जाना है, ये मोटरवे से जाना है, तो ऑटोस्ट्रादा मोटरवे है और एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले जो है वो जीटी रोड है। हाँ जी हाँ जी ठीक है, अब समझ आ गई? हाँ जी जी जी। क्योंकि यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम लेते हैं, कोई हाईवे कहता है, कोई तंजन सियाल कहता है, तो कोई ज्यादातर लोग तंजनस्याल ही कहते हैं। मतलब हमारे मतलब आम रूटीन में ना तंजनस्याल ही कहते हैं इसको, कभी किसी बहुत कम एक्स्ट्रा उर्बाने कहते हैं। हाँ जी ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਜਿਹੜਾ ਕਰਟੈਲੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੰਜਨ ਸਿਆਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी ठीक है जी। फिर बाकी कोई और सवाल? ओके जी ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होती है। ओके और स्केडा जरूर करें, दिन में कम से कम 2 स्केडे तो लाजमी करें और गौर से पढ़ के करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ग़ज़ाला, आपका बहुत अच्छा समझाती हैं माशाल्लाह। वेलकम। अल्लाह ताला आपकी नॉलेज में और इजाफा करे। आमीन सुमा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया काम कर। अल्लाह हाफ़िज़।